Hello everyone, my name is Ramvir from Mappers Academy. Today I am present important topic from Social Science, Geography, Chapter 1, Resource and Development. So first of all discuss about resources. As you know that without resources human being can't survive in the world. All the resources which are important for human being since billions of years. If you discuss different kinds of resources, energy resource, water, air, food, plants, animals, and etc. Minerals, all these are known as resources and these are useful for us. Without these resources, we can't survive. जो आज लोग पहुंच चुके हैं स्पेस में, मून पे लैंड कर चुके हैं, मार्स पे जाने की तैयारी है, ऑल दीज आर पॉसिबल बाय द रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्स आल्सो वेरी यूजफुल. So resources, the substances which are useful for us, that is known as resources. Now types of resources. There are different type of resources found in the world. Natural and human made resources also brought. We can divide these resources into two broad category, but in this book the type of resources: biotic, abiotic, renewable, non-renewable resources. All these resources are useful, but these are not included in our board examination this topic. These also are part of the resources. Now resource planning. Different kind of resources are limited in the world, but resources planning is essential. Due to resource planning, resources can be used for future and in a sustainable manner. So resource planning is necessary in India. It is necessary because in India there are some area which are resources are very less and this some area which are rich resources. For example, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, these have no mineral resources, but some areas, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, these have the rich resources. Okay students, so this is the resource planning. So it is necessary. Now conservation of resources, it is also part of resource planning that conservation is important for us. Conservation जरूरी होता है because conservation जरूरी इसलिए होता है कि for future generation we want planning, we want conservation, we want some important resources which will sustain at that time, which were useful at that time. So उसके लिए एजेंडा 21 बनाया गया. अर्थ समिट फर्स्ट रियो डी जेनेरो 1992 में ब्राजील में आयोजित की गई थी फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो आर पार्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज. Okay, these are the useful for us that we can't use resources unnecessary. We will use resources as a necessary things that we will use resources in a judicious manner that use for future generation without damage to the economic. Next, land conservation and land use pattern. Okay, student, one important word, conservation of resources. Land resources, land utilized. Yes, land is a part of the resources. Land is also an important part, important resource. And these are very useful. हम सब लोग खड़े हैं जमीन पर और soil इसी का main part है. पेड़, road, railway, all these are depend on the land. So it is of important resources. Land utilization in India. भारत में जो land utilization हो रहा है वो different में forest area है, barren land है, agriculture land है, waste land है, and current fallow land है. All these are categorized by the land utilization in India, and some important land also used for different categories. For example, net zone area. Net zone area क्या होता है? नेट जोन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसमें पर्टिकुलर जमीन पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र. मान लीजिए कि सपोज कीजिए यू हैव 100 बीघा या हेक्टेयर जमीन आपके पास लैंड है, बट इट इज सोन ओनली 80 बीघा और 80 हेक्टेयर. 100 में से 80 बीघे पर किसी पर क्रॉप खड़ी है, 20 पे नहीं है, तो जो 80 है वो ही है नेट जोन एरिया. इट इज अ ग्रोस क्रॉप एरिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ next, land is land degradation and conservation measure. Yes, it is an important topic. What are the method? What are the causes of land degradation in India? Industrialization है, pollution है, deforestation है, mining है, overgrazing. These are the important. Over irrigation also an important factor which cause damage to the land. So what are the method to conservation of land? Land should be conserved by different method. We should use afforestation. We should planting more and more tree.
ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल जो ड्यूटी जिसमें इसका जिक्र है कि हमें भी पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, उनको अननेसेसरी लगाने चाहिए नहीं पेड़, तो जरूरी हो जाता है। नाउ कंजर्वेशन में ही आ जाता है आगे, वी शुड यूज प्रॉपर मैनेज ऑफ माइनिंग और ओवर इरिगेशन शुड बी चेक्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय द लोकल पीपल, जिससे क्या होता है जमीन का भारी मात्रा में कटाव हो सकता है। ये सब मेथड थे जिसके द्वारा जमीन को हम मिट्टी को जैसे हम बचा सकते हैं। नाउ अनदर टॉपिक, सोइल ऑफ इंडिया एलिवेट्स ब्लैक एंड सॉइल। एक्चुअली सोइल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लैंड। सोइल इज अ, देखा जाए तो एक बायोटिक रिसोर्सेज, इसको मिलियन ऑफ ईयर्स में बनाया जाता है, हमारी फसलें इसी में होती है, और सोइल जो होती है नदियों के तटों पर आसपास पाई जाती है। दीज आर यूजफुल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोइल फाउंड इन इंडिया। नाउ एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, डिफरेंट काइंड ऑफ सोइल, 6 टाइप ऑफ सोइल फाउंड इन इंडिया। ठीक है, 6 तरह की मिट्टियां भारत में पाई जाती है, अकॉर्डिंग टू कलर, टेक्सचर, अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है वो है एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल फाउंड इन इंडिया इन विच एरिया? एक्चुअली एलुवियल सोइल इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्रेड सोइल ऑफ इंडिया एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा एंड टिल टू आसाम। लगभग पूरे नॉर्दर्न प्लेन आर कवर्ड बाय द एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल आल्सो 2 टाइप, 2 तरह की मिट्टी होती है एलुवियल सोइल भी, खादर एंड बांगर। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं खादर एंड बांगर में। खादर in class 9th also you have studied about Khadar. Khadar is a new alluvial and Bangar is old alluvial soil. It is very fertile. Khadar, Bangar is less fertile. होती तो है लेकिन ये इतनी फर्टाइल नहीं होती जितनी की खादर होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो एलुवियल सोइल सबसे ज्यादा फसलें इसमें होती है। इट इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, सो इट इज यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ऑल्सो स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, ये मिट्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत में। ओके नाउ इसमें आ जाता है आगे ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल इज ऑल्सो नोन एज द कॉटन सोइल, रेगुलर सोइल इसको कहा जाता है। इट इज फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप ऑफ इंडिया। अगर हम मैप में इसको जिक्र करें, सो मैप, ओके, this portion we have used this portion or this Deccan trap or Malwa Plateau also this is the black soil area। ये ब्लैक सोइल एरिया है, भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। कॉटन इसकी सबसे बड़ी फसल है, सो इट इज नोन एज द कॉटन सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, ये बाकी इस एरिया में है। और मैंने आपको एलुवियल सोइल बताया, तो एलुवियल सोइल इसके ऊपर जो पूरा पट्टी के रूप में दिखा गया है, डेक्कन प्लेटू यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एन एलुवियल सोइल। ओके, एलुवियल सोइल यहाँ पर पाई जाती है। नाउ द अनदर सोइल इज, दीज आर द लेटराइट, एरिड और माउंटेन सोइल, फॉरेस्ट सोइल ऑल्सो। लेटराइट सोइल दीज आर फाउंड इन द हैवी रेनफॉल, हैवी टेम्परेचर एरिया, साउथ इंडिया में कहीं कहीं जगह पर पाई जाती है, और इसमें फसलें होना मुश्किल हो जाते हैं। हालांकि इसमें कर्नाटका और केरल वगैरह में, तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में इसमें जो फसलें उगाई जाती है वो कैशूनट हो सकती है, कॉफी, टी, ये पहाड़ियाँ जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ पर इसको उगाया जाता है। तो दीज आर यूजफुल एट दैट टाइम। एरिड सोइल फाउंड इन द राजस्थान, राजस्थान का पूरा एरिया यहाँ पर दिया गया है। तो दिस सोइल ऑल्सो फाउंड इन द राजस्थान, राजस्थान की मुख्य फसल है ये। Now mountain soil or forest soil. Forest soil also covered in the Himalaya mountain. These are useful, but these are not useful because in high areas these are became scarce where human being not reach at that time. Different soil are part of the forest soil. Okay, now last portion, soil conservation and measures. What are the soil conservation measures? Actually soil मिट्टी की तरह ही लैंड डिग्रेडेट हो रही है, तो सोइल इज अ पार्ट ऑफ द लैंड। सो डिफोरेस्टेशन हो गया और ओवर ग्रेजिंग हो गया और माइनिंग हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पोल्यूशन ऑल्सो, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ सोइल इरोजन इन द वर्ल्ड और ऑल्सो इन इंडिया। व्हाट आर द मेथड्स टू कंजर्व सोइल? एक्चुअली सोइल को कंजर्व करने से कंटूर हो गया, स्ट्रिप फार्मिंग हो गया, प्लांटिंग ट्रीज ऑन साइड्स ऑफ द रोड हो गया, ओवर ग्रेजिंग शुड बी चेक्ड, माइनिंग शुड बी चेक्ड। So these are the methods. प्लांटिंग हमें करना चाहिए बहुत ज़्यादा, एफोरेस्टेशन, इसके द्वारा क्या हो सकता है कि we should save the soils. Okay students, thanks.